Why didn't you post any pics with Ishan from your trip to Mumbai? That is because we broke up. How much do you pay your loan per month? And even by paying loan, how do you manage to buy luxury? I am the sibling of someone with special needs. This I learned very late in life. People लोगों के बारे में बात करके डिस्कस करते हैं ना लोग, वो बहुत सरफेस लेवल लोग लगते हैं. So that is the reality of these award shows. I think ये काफी ignorance of opinion है from people जिनको समझ नहीं आता कि content creation how it actually works. Hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. This is the season of Q&As and get ready with me. A lot of you guys were asking कि just bring back those chatty Q&A videos. Truth is मेरे लाइफ में ऐसा कोई इवेंट आ नहीं रहा था जहाँ के लिए मुझे get ready होना पड़े. So I wanted to make it very authentic, very natural. And you guys have been demanding the makeup tutorial of this look कि मैंने किसको कैसे achieve किया है. And I really wanted to do it also. मैंने अपनी jewelry collection video में भी ऐसा ही कुछ makeup किया था. And when I went to the Femina X Mama Earth award show Beautiful Indians का, तब भी मैंने यही makeup किया था because it was tried and tested. In general जो भी आप लोगों ने मेरे से पूछा है या मेरे बारे में या मेरी लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हो, मेरे व्यू पॉइंट्स जानना चाहते हो, I am gonna bear my soul all to you guys while doing this makeup because it's kind of a therapy. So if you want to watch me create this look and answer a lot of your juicy questions, please keep on watching. And without any further ado, let's get started. Oh my god, let's get started. Okay जी, this is my face without any inch of makeup, no lip balm, no moisturizer because I'm gonna tell you guys कैसे skin prep करते हैं like ऐसे इतने बड़े function के लिए. And to accompany me, I have this whole hair and makeup bag जो कि मैं लेके गई थी अपने event में and I have not unpacked this because of this video. Alright, let's take some questions. Something that makes you and Ishan similar and different. So I'm using this 5BB plant remedy for months now and ये मैं सबसे पहले अपनी skin पे लगाती हूँ. Because my skin is oily, I just take 2 small drops of it and इसको ना अच्छे से गर्म करना होता है अपने हाथ पे ऐसे करके and then धीरे धीरे अपने pores पे लाना है. So it just gives a flawless base to your skin. Something that makes me and Ishan similar is our love for food, our love for travel and exploration. This is something that we bond on a lot. जब भी हम किसी trip पे जाते हैं, so you guys see us eating and exploring and just bike पे कहीं कहीं घूमना. I think what makes us both very different is that he is a free soul. He likes to go with the flow. He doesn't like कि बहुत ज़्यादा ऐसे दिन में ना चीज़ें lay down हो and वो proper ऐसे टिक मार्क कर रहा हो. On the other hand, I'm a very different person. I am very organized in my ways and मैं बहुत prefer करती हूँ कि मेरे दिन में एक schedule हो, एक routine हो. But everything is massaged in and my face already looks a little more snatched. I'm going to use this L'Oreal का 1.5% hyaluronic serum. I've been using this for ages and ये मैंने small size में specifically इसलिए मंगाया था ताकि मैं travel में अपने bag में इतना छोटू सा लेके जा सकूँ. I have a bigger one of this bottle because I just love it a lot. So इसके तो I can take as many drops as possible and then I just try to pat it inside. इससे ना एक स्किन को प्लम्पी सा इफेक्ट मिल जाता है. It looks very youthful and बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड लगने लगती है. After doing that, I go with my moisturizer. ना Mamaearth वाले products ना ईशान के बैग में रह गए, वो आने बाकी है. So I have a different moisturizer, but on that day I use Mamaearth का gel moisturizer. Since I'm gonna be under harsh lights, I'm using this Neutrogena का sunscreen. जो SPF है ना, it doesn't only protect you from the sun, it also protects you from harsh lights. I'm gonna let all of this absorb. तब तक मैं थोड़ा सा lip balm लगा लेती हूँ. How much do you pay your loan per month and even by paying loan how do you manage to buy luxury से याद है I'm going to use this 24 karat gold serum by EBA. So ये वाला serum मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ before applying my makeup. I'm not comfortable in disclosing like कितनी है मेरी EMI like the full number but it is 1 lakh plus and I'm able to manage it so far. I think I will be able to manage it till पूरा मेरे सिर से EMI नहीं कट जाती. मैंने बहुत सोच समझ के घर लिया है, just managing finances, discussing it with my family. तो like 2-4 मंथ में ना आप ऐसी कोई luxurious चीज ले ही सकते हो because by default if you are at a certain level in content creation and influencing आपकी उतनी earning होती है. So I don't need to save that much for it. अगर मेरा कोई मन करता है मैं जाके ले लेती हूँ and it is not something जो मैं irresponsible हो रही हूँ अपने money के साथ. I sat my parents down and I had this whole intervention with them कि मैंने बताया मेरी कुछ checklist है जो मैं पूरी करना चाहती हूँ इस life में and I want certain luxury items and want certain trips and I just told them कि अच्छा मेरी इतनी कमाई है, इतनी मेरी savings है, इतने की EMI जाएगी and what else is left of it I think मेरे को इससे ये बाय करना चाहिए and I'm doing my savings by the side. ऐसा नहीं है कि मैं अपनी savings से उड़ा रही हूँ. Apart from the savings I'm able to do that. Plus I'm able to buy these things because मैंने अपनी जो main responsibilities थी, जो ultimate dreams थे वो पूरे कर लिए. So while answering this question ना मैंने अपने face को double prime किया है since I have oily skin और मेरे pores भी काफी exposed है. I like using this Fit Me वाला primer all over my face. This is their matte plus poreless. This is amazing and for my large pores around
ऑन द नोज एरिया आई हैव बीन यूजिंग दिस पोर मिनिमाइजर प्राइमर फ्रॉम इनसाइड. इसको मैं यहाँ पे सिर्फ अपने टी जोन पे ही कॉन्सेंट्रेट करती हूँ बिकॉज इससे बिल्कुल वो ब्लर्ड आउट इफेक्ट आता है एंड योर पोर्स राइट हियर लुक वेरी वेरी मैनेजेबल. ऑन दैट डे फॉर माई बेस आई यूज दीज टू प्रोडक्ट्स ओनली. दिस इज द LA Girl Pro Conceal इन द शेड प्योर बेज. इससे मैं सारी डार्कनेस जो मेरे फेस के अराउंड है या फिर कोई भी एक्ने मार्क्स है वो कवर करती हूँ. द सेकंड स्टेप वुड बी फाउंडेशन एंड आई यूज दिस मैट प्लस पोरलेस 16 hour oil control foundation from Maybelline Fit Me. Literally you don't need any luxurious type की foundation for that finish. I use these two and I was sorted. How do you deal with self doubt and do you feel like quitting at all? यार self doubt से deal करना तो क्या ही है. हर एक बंदा I feel like अगर कोई बोलेगा कि मुझे self doubt नहीं है, I think they're lying. Like सबको ऐसे टाइप के issues होते ही हैं लाइफ में. जब वो पैंडेमिक वगैरह हिट हुआ ना and I had a very weird situation of मैं क्या टाइप का कंटेंट बनाऊँ बिकॉज मेरा बहुत शॉपिंग रिलेटेड कंटेंट था एंड मैं एक्सप्लोर वगैरह बहुत करती थी लाइफ में. तो उसके बाद आई वॉज इन दिस सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन कि लाइक इसके अलावा मेरा और कंटेंट है ही क्या. लाइक हॉल नहीं कर सकते हो, कहीं जाके कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, लहंगे नहीं दिखा सकते हो चांदनी चौक के. सो व्हाट डू आई डू नाउ. एंड उस टाइम मुझे सेल्फ डाउट मेरा लेवल बहुत हाई था. इफ आई शेयर कि मेरे लाइफ में अभी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, अच्छी बुरी स्ट्रगल्स या फिर बहुत अच्छी चीज़ें, विल आई गेट दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस. आफ्टर अ पॉइंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपकी ऑडियंस कितनी अच्छी है, वो कितनी वेज में आपको एक्सेप्ट कर रही है विद ओपन आर्म्स एंड यू गेट कॉन्फिडेंट. एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस इज किंग. अगर वो कुछ देखना चाह रही हो और तुम नहीं बना रहे हो देन यू आर द फूल. लाइक यू हैव टू केटर टू ऑडियंस इफ यू आर इन अ बिजनेस जहाँ पे आपको पब्लिक देख रही है और उनकी प्यार और एक्सेप्टेंस मैटर्स द मोस्ट. आई कांट टेल यू एक भी दिन लाइफ का जब मैंने सोचा कि मैं सब क्विट कर दूँ. येस देयर आर डेज व्हेन आई डोंट फील लाइक डूइंग वर्क. आप लोगों की बहुत ज्यादा वैल्यू है एंड आई डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड. इट इज एन एक्चुअल जॉब फॉर मी. द अंडर आईज लुक सो कूल डूड. लाइक इसके ऊपर जब फाउंडेशन लगेगी ना इट विल लुक अमेजिंग. नेक्स्ट अप इज इफ यू वांट टू से समथिंग टू योर यंगर सेल्फ व्हाट वुड इट बी. लाइफ में कभी कुछ भी हो जाए ना, डोंट डाउट योर इंटेंशंस. अगर आपको पता है कि आपकी इंटेंशंस बिल्कुल सही है, यू डोंट नीड टू डाउट देम एट ऑल, चाहे दुनिया कुछ भी कह रही हो. बिकॉज आई एम समवन जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना गिल्ट लेके घूमती है एंड आई डोंट लाइक फीलिंग गिल्टी ऑफ थिंग्स दैट आई हैवंट इवन डन. सो इंटेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर जर्नी ऑफ लाइफ. नॉट इवन वर्क, जस्ट इंटेंशन विद पीपल, विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, विद रिलेशनशिप्स. एवरीथिंग मैटर्स एंड कम्स डाउन टू कि आपकी इंटेंशन प्योर थी या आपके मन में खोट था. अगर आपकी इंटेंशन सही है एंड आप लोगों के साथ दिल से अच्छा करना चाहते हो, यू आर गुड विद देम, यू आर हेल्पिंग देम, do not expect people to behave in the same way. This I learned very late in life. People don't owe you anything. If they don't treat you with that kind of a respect जिससे आप सोच रहे हो कि आप उन्हें treat करते हो with all good intentions, they don't owe you that kind of a behavior. Just do everything with good intentions. Don't doubt them. Don't feel guilty. Don't go on running behind people, clearing your side of the story. There is no need अगर आप सच्चे हो तो. And also अगर आपने कुछ अच्छा किया भी है, you can't expect anything in return because people don't owe you anything in life. I am in love with this base. I don't know कि ये natural light कितना इसको justice कर रही है. मैंने एक ring light और सामने मेरे धूप पड़ रही है. I have noticed this in life कि before putting on the powder blush अगर आप थोड़ा सा tint लगा लो ना तो it lasts longer जब आप powder blush लगाते हो क्योंकि बहुत ही सुंदर एक mixture of color आ जाता है. So I'm just gonna do that. Do you think content creators promote hoarding with their haul videos? What do you think? If you are a lifestyle creator जिनकी audience loves shopping, okay, and they want recommendations for college, for अगर आप कहीं बाहर जाते हो, maybe you are in office. So I feel like it comes with the job. You have to recognize आपकी कैसी audience है and you have to cater to them. And content creators literally आपको 10 ऑप्शन दिखाएंगे और I don't think किसी भी content creator को मैंने आज तक ये बात करते हुए सुना है कि okay you guys these are the most amazing products by all 10 of them. No, they always say कि इसमें से अगर आपको कुछ पसंद आया हो let me know, आपको बाय करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. ये वाली चीज़ मैं परफेक्टली रिकमेंड करूंगी, ये वाली चीज़ मैं थोड़ी कम रिकमेंड करूंगी. कोई भी जॉब आप देख लोगे ना उन सबका कुछ ना कुछ होता ही है. मे बी यू नीड टू होल्ड फाइल्स, मे बी यू नीड टू होल्ड बुक्स. आई फील लाइक इट्स हाई टाइम के लोग हमारी ऑडियंस को या किसी की भी ऑडियंस को बुद्धू समझना छोड़ दे या यंग इंप्रेशनेबल माइंड समझना छोड़ दे. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ समवन इज यंग एंड इंप्रेशनेबल, उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं एंड कैसा उन पे इफेक्ट हो रहा है. द नर्चरिंग यू गेट एट होम, हम यूट्यूबर्स आपके पेरेंट्स नहीं है. एंड अगेन इफ यू आर एन एडल्ट यू हैव फुल राइट्स टू मेक अ डिसीजन कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए. इफ यू वांट मोर ऑफ स्टफ, इफ यू डोंट वांट मोर स्टफ, इफ यू वांट टू स्टे मिनिमल. आई थिंक ये काफी इग्नोरेंस ओपिनियन है फ्रॉम पीपल जिनको समझ नहीं आता कि कंटेंट क्रिएशन हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इन द लाइफस्टाइल एंड स्पेसिफिकली शॉपिंग एंड हॉल्स कैटेगरी. So it's high time कि हम ऑडियंस को क्रेडिट दे where it's due. They are intelligent people. I'm sorry but these brows are looking so snatched and this is just one single product. This Maybelline का tattoo brow gel something but yeah I love it. Like look at this, my natural brow.
उस दिन ना मैंने अपनी ब्राउज थोड़ी लाइट रखी थी एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि आपको अपनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग ब्राउज रखनी चाहिए थी. तो टुडे आई हैव डन अ स्ट्रॉन्ग ब्राउ and the result is fluffy Shinchan brows. I just take a quick dip in the Fix Plus lavender वाला. ये मुझे बहुत पसंद है MAC का. फोटोज के साथ साथ आपकी रियल लाइफ में भी आपको अच्छा मेकअप लगेगा. It doesn't look harsh or anything. For my eyes I'm gonna use this Huda Beauty का Rose Gold Palette Remastered. This is something जो मुझे जानवी और गोपाली ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था and I am in love with this product. Like look how much I've used this. So the next question is which new creator you met in Mamaearth event? Honest review about them. I feel like the new creator that really जिन्होंने मेरे दिल पे ऐसे छाप छोड़ दी है is रूपल यादव. I have been watching her content on and off. Like I won't lie कि मैं बिल्कुल ही पागलों की तरह देख रही थी, but her content is so consumable कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को recommend उसकी reels हो रही थी in general. And I feel like with creators who are really successful in what they do and are achieving their dreams, it's very important to stay humble. Like ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पैसा और फेम जो नई नई आपके पास आई है वो आपके सिर चढ़ गई है एंड बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड आ गया आप में कि आप किसी को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर ही नहीं रहे. दैट वॉज नॉट द केस विद हर. आई फील लाइक शी इज़ वन सच क्रिएटर जो काफ़ी ज़्यादा हम्बल थी, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थी एंड आई जस्ट रियली लाइक दैट अबाउट हर. लाइक शी ट्रीटेड एवरी वन विद रिस्पेक्ट, लव, वार्म. एंड आई डोंट थिंक आई एम समवन जो एक कॉन्टेंट क्रिएटर पे रिव्यू देगी कि ओहो वो कैसे निकले, बट आई वुड डेफिनेटली tell you guys that she is one of the real ones and I don't like people जो आके अपना एक बहुत ज़्यादा negative energy का aura लेके आए that you feel uncomfortable approaching them. Next question is who or what is more important to you, fame or money? money. To be really honest you guys, famous होने के बहुत ज़्यादा cons भी हैं. You have a lot of pros but you do have a lot of cons which I feel like अगर मेरे को 4 लोग कम जानते तब भी मेरा चल जाता. But since the job is that way, by default you get fame and you get money and they go hand in hand. So yeah, अगर मेरे को एक choice मिलती लाइफ में I would have definitely preferred money because I know what the absence of money feels. जब पैसे नहीं होते how does it feel? It might not bring happiness but it brings a lot of comfort. Next question is what brand you would never ever suggest to anyone? That is a very spicy question. I don't like answering ऐसे वाले questions because then brands मेरे पीछे पड़ जाते हैं. But what the hell, we are here to spill the tea. Glow and Lovely, formerly known as Fair and Lovely. So that is one brand जिसकी मैंने कभी कोई चीज़ यूज़ नहीं किया. I feel like मैं Pond's की पहले White Beauty यूज़ करती थी जब मैं बहुत छोटी थी स्कूल में. That cream used to be just so amazing because my ex-boyfriend back then really liked fair girls, so I wanted to be fairer than I actually am and उस पूरे रट में मैं फंस गई थी. But at that point of time I considered using Fair and Lovely also. So Pond से मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज उनके थोड़े फॉर्मुलेशंस ट्वीक हो गए हैं. आई हैव नॉट वर्कड विद देम एवर आई फील, बट फेयर एंड लवली या ग्लो एंड लवली से मुझे बहुत प्रॉब्लम है. इनफैक्ट अभी आई थिंक April में I got this collab from one of these brands, I can't remember, but they had this glutathione वाली कोई range जिसमें वो fairness promote नहीं कर रहे थे but they were like this will make you glow. And I was like this product is literally marketed in the industry as something जो आपको fair बना देगी and just because आपने fairness हटा के glow कर लिया it doesn't mean कि आपके brand के ethics change हो गए हैं. This is what the makeup looks like पीछे से अगर आप मुझे देखोगे तो, and zoom in अगर मैं आप लोगों को करूँ तो this is what my eyes look like. To give it more of that oomph I'm gonna use this 24K वाला कलर so that यहाँ पे हल्का सा और ग्लिटर पड़ जाए just like this. एंड इसको मैं यहाँ भी यूज़ कर लूँगी ओवर दुबई. सो दुबई और जो 24 कैरेट का मिक्सचर है दीज शेड्स आर इनक्रेडिबल. एंड देन इसको भी मैं थोड़ा सा अंदर लाऊंगी जस्ट लाइक दिस and I feel like this shadow looks so cool. Do you believe in red flags? What are some of your red flags? Red flag would be people who gossip or talk about other people and not even that, they try to convince other people कि जो हमारी सोच है ना बिल्कुल तुम वैसे ही सोचो and अगर तुम नहीं सोचते they make you feel guilty about it. So I feel like the people who are comfortable in talking to you about other people and उनकी majorly in a negative way बुराई करना, they will be comfortable with other people talking about you behind your back and that is something that I've really noticed in life. So मुझे नहीं पसंद कि कोई बहुत ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट करे दूसरों के बारे में बात करने पे. इफ आई एम स्पेंडिंग टाइम विद यू लेट्स टॉक अबाउट आवर गोल्स, लेट्स टॉक अबाउट आवर करियर्स, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट पास्ट ट्रॉमा. इट शुड बी समथिंग नॉट सरफेस लेवल. मुझे जो लोगों के बारे में बात करके डिस्कस करते हैं ना लोग वो बहुत सरफेस लेवल लोग लगते हैं. लाइक ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ को छोड़ के दुनिया में जो भी हो रहा है उस पर फोकस कर रहे हो एंड उससे ना किसी का भला नहीं होने वाला है. जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा. आई एम गोना टेल यू गाइस माय सीक्रेट लिप कॉन्कॉक्शन क्योंकि आप लोगों ने बहुत पूछा था कि मैं कौन सी शेड इस इवेंट पे लगा के गई थी विद दिस आई मेकअप एंड एवरीथिंग. सो आई एम गोना टेल यू गाइस बट लेट्स जस्ट सी द सेकंड क्वेश्चन. मैं नीचे डिटेल्स लिख दूंगी. अपार्ट फ्रॉम ऑल द गुड साइड्स ऑफ द अवार्ड शो और फंक्शन
what are the bad sides of it. I don't think there is any bad side to the award function I have attended. To be really honest, मुझे तो हर चीज़ ही अच्छी लगी थी. But I will tell you a real side, and this is like me spilling the tea. The real side of award functions is that nobody is there. Like वहाँ पे अगर आपने 200 लोगों को बुलाया है, including Bollywood celebrities, कोई वहाँ पे अगर 7:30 या 8 बजे इवेंट शुरू हो रहा है और 12 बजे खत्म हो रहा है, इतने घंटे कोई वहाँ पे नहीं रहने वाला है. Like I haven't seen anyone stay for longer than, like Bollywood celebrities for longer than 20-40 minutes. वो भी बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेच कर रही हूँ. So that is the real side. I won't say it's an ugly side या bad side, but that is the reality. And a lot of times when you see award functions on TV, you feel like कोई स्पीच दे रहा है and नीचे लोग बैठ के स्माइल कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं. वो सारा एडिटेड होता है. सारे वीडियोग्राफर्स आके उनके फेस पे जूम करके जब तक वो नीचे बैठे होते हैं ना, सारे उनके एक्सप्रेशंस ले लेते हैं. जो बाद में किसी को और अवार्ड मिला है एंड वो प्रेजेंट नहीं भी थे, तो आपको दिखेगा कि वो बंदा बैठ के क्लैप कर रहा है और स्माइल कर रहा है उनके लिए, विच इज़ नॉट द केस. सो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ दीज अवार्ड शोज. एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड थिंग. सबके अपने अपने टाइम होते हैं. हम इन्फ्लुएंसर्स तो पूरे टाइम ही रहते हैं अवार्ड शो में, बिकॉज फॉर अस दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग. मैंने अपने लिप्स पे लगाई है एस्प्रेसो मार्टिनी फ्रॉम लव अर्थ, एंड देन उसके ऊपर मैं बीच में अपने सेंटर पे लगाने वाली हूँ. इट इज़ कॉल्ड बॉटमलेस मिमोसाज. ये पूरा एक मिनी पैकेट मंगाया था मैंने नायका की सेल के टाइम पे. आई ऑल्सो रिकमेंडेड इट ऑन माई इंस्टाग्राम. सो इफ़ यू वॉन्ट दीज इट्सी बिट्सी थिंग्स टू बी रिकमेंडेड टू यू, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो. सो सिर्फ मैं इसको सेंटर पे लगाऊंगी बिकॉज इट्स अ लाइटर कलर. इससे ना लिप्स और प्लम्प लगने लगते हैं. सो बस इतना ही लगाऊंगी एंड देन आई जस्ट ट्राई टू ब्लेंड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंट यू स्केयर्ड ऑफ पुटिंग डाउन योर पर्सनल लाइफ ऑन सोशल मीडिया, फैमिली, रिलेशनशिप, एवरीथिंग? नो, आई एम नॉट. आई एम रियली नॉट. आई एम वेरी ब्रेव व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स. आई डोंट थिंक के आई एम गोना फील बैड और any kind of way putting my life out on social media. I mean, there are always boundaries that I maintain. Like अगर आप लोग कुछ देख रहे हो ब्लॉग में, you guys feel like कि हम तो इसके बारे में बहुत जानते हैं, but there are so many things जो मैंने छुपा के रखी है आप लोगों से, because I don't feel comfortable sharing them. पहले भी जब मैं कुछ अपना शेयर करती थी, I would like to bring this to your notice, मैंने तब शेयर किया है जब I was comfortable with sharing it. I was not sharing कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कैसे ऑपरेट करती हूँ, when I was living in that white brick wall house. I shared it when I was moving out of that house because I just wanted to document that कि अच्छा ये भी एक फेज था लाइफ का, एंड अब ये भी फेज है जब मैं थोड़ा अपग्रेड कर रही हूँ. I have so many cool people in my life like you guys, and जिस तरह के comments and DMs and support मुझे मिलता है, I just feel so proud कि वाओ, जो मैं चाहती थी वो हो गया. जैसे लोग मैं अपनी लाइफ में चाहती थी वैसे ही मैंने अट्रैक्ट किए हैं. So yeah, I don't feel scared at all because the love that you get is so immense compared to जो छोटे मोटे comments आते हैं. It's just immense amount of love and abundance. So I never feel scared of sharing. Next one is what to do if someone has got triggered with something you said, even if fault was theirs, and now they won't let it go. So I feel I see this situation from two different perspectives, and I'm only able to say this because this is sort of something that has come up in my therapy sessions, and I'm very open कि मैं therapy लेती हूँ. Even I've documented like a few things. So if someone has got triggered with something that you did or you said, I feel like they have full right. Like I said in the starting of the video, no one owes you anything. People see things from their perspective, right? And this is you who has to understand कि अगर आपने एक चश्मा पहना हुआ है जो ऐसे सरोजनी नगर में नहीं मिलते ऐसे रेड फिल्म वाले, यू आर सीइंग समथिंग लाइक अ गर्ल इज हियर इन वाइट ड्रेस, द सेम वाइट ड्रेस विल लुक रेड और पिंक टू समवन जिन्होंने वो रेड फिल्म वाले ग्लासेस पहने हुए हैं. सो इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव. क्योंकि मैंने वो रेड कलर का ग्लास पहना है तो मुझे वो चीज़ रेड या पिंक लगेगी. किसी ने ग्रीन कलर का पहना है, किसी ने क्लियर पहना है, तो सबको अलग अलग वे में सेम चीज़ दिखेगी. सो दैट इज वाई अगर किसी को आपकी बात का बुरा लगा है बट आपकी इंटेंशन प्योर थी, आई डोंट थिंक कि आप इसमें ऑफेंस ले सकते हो, बिकॉज दैट इज अप टू द पर्सन. उसकी जितनी मेंटल कैपेसिटी है एक चीज़ को समझने की, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसने जिस कलर का चश्मा पहना ना उसको वही चीज़ दिखेगी. नो मैटर आप कितना भी उसको अपने चश्मे के हिसाब से बताने की कोशिश करो, नहीं मुझे तो यही दिख रहा है, ये ऐसे ही है, कोई नहीं मानने वाला उस बात को. सब अपने पर्सपेक्टिव से चलते हैं, सब अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो उन्होंने ओवर द ईयर्स चाइल्डहुड से लर्न किया है, जो भी उनके संस्कार है ना, वो उन्हीं चीज़ से ऑपरेट करते हैं. यू जस्ट काइंड ऑफ हैव टू बी ओके विद द फैक्ट दैट people can misunderstand you. If the fault is there, so it is also them to understand कि उनकी fault थी या नहीं थी. Let them cool down. Maybe they will come back and understand कि हाँ भाई मेरी भी इस situation में थोड़ी बहुत गलती थी. But अगर नहीं भी करते ना तो we don't have a right to tell anyone कि तुम्हारी यही गलती थी. I feel like this thing comes with controlling people, which is the second thing that I'm coming on to. Like why do we want people to behave just like we want them to behave? If someone chooses to take an offense, that's their problem. And if you're able to understand this thing ना, I feel like life बहुत ज़्यादा sorted हो जाती है. Let them take
टेक ऑफेंस, अगर वो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, अगर आप उनकी लाइफ में मैटर करते हो, कभी ना कभी जाके वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, यू विल कम टू अ मिडिल ग्राउंड. बट अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दे रिफ्यूज टू लेट इट गो, then let them have that kind of baggage. Why do you want to carry that baggage and guilt of something जो तुमने किया भी नहीं है? Let it go अपनी साइड से ना. अगर वो let go नहीं कर रहे तो आप कर दो, इसमें ईगो की कोई बात ही नहीं है. मैं अपने अंदर वो बैगेज नहीं रखती हूँ कि ओ माय गॉड मेरी बात का बुरा मान गए, जबकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था. नहीं था तो नहीं था यार, अपना मस्ती में मौज करो. Alright you guys, this makeup is finally done. This is the makeup that I did on the day of the event. I think we should style the hair now because you guys wanted कि मैंने कैसे अपने बाल स्टाइल किए थे. I think उस दिन मैंने अपना यहाँ से निकाला हुआ था partition and I'm just gonna part my hair like this. And for styling my hair I use this straightener from Be Blunt. This is not sponsored but I literally love this. मेरे पास Dyson Coral है but I still go for this Be Blunt Pro वाला straightener and I'm gonna set it to 170. I'm gonna tell you guys one simple step जो मैं बाकी सारे बालों पे रिपीट करने वाली हूँ and then I'll keep answering the questions as I'm curling my hair. स्ट्रेटनर को लेती हूँ, एक बार मैं इसको हल्का सा 1 सेकेंड के लिए स्ट्रेट करूँगी ताकि सारी फ्रिजीनेस चली जाए एंड देन इसको मैं अपने फेस से अवे पीछे की साइड ऐसे मोड़ूंगी एंड जैसे जैसे मैं इसको ऐसे मोड़ती रहती हूँ आई विल ट्राई, थोड़ा सा मैं नीचे आऊँ फिर मोड़ूँ, फिर थोड़ा नीचे आऊँ फिर मोड़ूँ एंड दैट इज़ लिटरली वॉट आई डू. फिर थोड़ा नीचे आऊँ फिर मोड़ूँ. सो इससे ना एक बहुत सही कर्ल हो जाती है बालों में एंड दिस इज़ द फाइनल इफेक्ट. आई रियली लाइक इट. रैंडमली मैं करती हूँ, कभी कभी मैं उल्टी डायरेक्शन में भी कर लेती हूँ बिकॉज आई एम नॉट सिस्टमैटिक इन दैट वे विद माई हेयर एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बट this curl lasts for a really long amount of time and I really like the effect of it. If you could ask one question each to Mridul, Himadri, Manasi, Gopali, what would it be? That is a very interesting question. Okay, so for Mridul, I would definitely ask कि तुम इतनी creativity कहाँ से लाती हो? Like I really love वो कैसे कैसे type के ideas लाती है. She's a queen of mystery boxes and she just really started this trend in India. At least I feel help a girl out, like let me know your secrets. उसके बाद मैं हिमाद्री से पूछना चाहूँगी उसका क्या fitness routine है because I recently saw her at the event and she looked bomb.com. Like the dress was pretty but she looked prettier and I just really liked her body, so I would like to know her fitness routine. I would like to try it even. So yeah, हिमाद्री से मैं यही पूछना चाहूँगी. Then मानसी से मैं ये पूछना चाहूँगी can I please come and play with Evie? I can't believe कि मेरी माँ से इतनी अच्छी खासी बनती है बट अभी तक मैं उसके घर नहीं गई हूँ, स्टूडियो नहीं गई हूँ and I haven't played with Evie. So can I please have the permission to play with Evie and come and spend the whole day with you and her and we can talk about a lot of stuff. And the last question, I don't feel like this is just for Gopali and I would just like to ask Gopali and Janvi both कि भाई मिनी कूपर में राइड कब दे रहे हो मुझे? They've promised me a ride. They're like सूरत आओ, I'll be the passenger princess while you guys drive and show me around again. Like last year भी बहुत मजा आया था. So I'm just really excited to just sit in their new car and just experience the Mini Cooper life. How do you take care of Ravi when he is on his episodes? My friend's brother is also autistic, needs help. There was one thing जो हमें women's के डॉक्टर ने suggest की थी, that was deep pressure. It usually really helps the people who are MR or especially abled or autistic क्योंकि वो deep pressure में it just calms down their nervous system. So जोर की हक करना होता है, इतना जोर की कि उनकी breathing level ठीक हो जाए. But after a certain point you need the help of a doctor and वो medication उनको देना बहुत ज़्यादा important है. So right now we are in the process of still figuring it out. I don't think we've figured it out as a family. उसके एक नए phase में like he's in his 20s. दिन ब दिन वो change होता जा रहा है and he's become so violent. जब से मैं मुंबई से वापस आई हूँ actually 1 week हो चुका है and he has become like a different person. Every week he is someone new and we're just trying to see के what is working, which medication is working. हर हफ्ते हमें उसे डॉक्टर को लेके जाना होता है. Like if you are related to a person with special needs, I feel like the journey is constant. You never really can say on a blueprint के okay do these 3 things and वो calm down हो जाएंगे. It doesn't work like that. So जिनके साथ होता है उन्हीं को पता होता है कि क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं and हम कर रहे हैं, अभी भी figure out कर रहे हैं and I feel like we're there. But Ravi का topic is something that I will discuss someday later because a lot is happening. Do you ever after achieving so much feel insecure that you might lose everything in a snap? And I'm gonna give you guys a very honest answer. So I know के what it feels like to have nothing. एंड मैंने ये आई थिंक मनोज बाजपेयी के किसी इंटरव्यू में बात सुनी थी कि जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता उनके पास पाने को पूरा आसमान होता है एंड दैट जस्ट रियली स्ट्रक विद मी. आई फील लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड तुम किसी की हेल्प से किसी के पुश से आगे नहीं बढ़े हो ना, यू हैव दिस इनर कॉन्फिडेंस कि ओके मैंने ये जर्नी 0 से 100 तक खुद ही तय की थी ना, अगर फिर 0 पे आ गई फिर से आई नो द वे, मुझे वो रास्ता पता है इधर से उधर जाने का एंड अगर तब भी सब कुछ 0 हो गया तो मैंने ही तो किया था. अगर मैंने लाइफ में किसी के पुश से आगे बढ़ी होती लाइक कोई बड़ा यूट्यूबर मुझे अपने चैनल पे बहुत दिखाता या
फिर मेरे को कोई बड़ा अमीर बंदी हेल्प कर देते मेरी चीज़ें लेने में एंड ऑल ऑफ दैट, तब तो मुझे होता भी कि अगर मैं यहाँ से नीचे गिर गई, मे बी मेरी उन लोगों से अब नहीं बनती, मे बी अब वो मुझे पुश नहीं करेंगे, मुझे हेल्प नहीं करेंगे, तो ओ माई गॉड अब मैं क्या करूँगी। बट ऐसा कुछ है ही नहीं। आई कैन से इट वेरी प्राउडली एंड वेरी लाइक बहुत ग्रेटफुल होके भी कि जो भी मैंने किया है वो अपने बलबूते पे किया। ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स और आसपास के लोगों का काफ़ी अच्छा मेंटल सपोर्ट होता है, मेरी मॉम का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो आई फील लाइक अगर एक स्नैप में सब कुछ चला भी गया ना, I will get it back. I have that kind of confidence and I know I will get it back. मैंने पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर लिया। Like I said, मैंने वो रोज ग्लासेस से मैंने वो क्लियर ग्लासेस लगा लिया। अब मेरी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आ गई है। Please don't take it wrongly, but what about Ravi in the future? Like tomorrow your parents might not be there. I am well aware of the fact that tomorrow I might not have the support of my parents. Tomorrow my parents might not be there to take care of Ravi, and that is why I keep myself involved with what is happening with Ravi. Like even if डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कर रहे हैं, आई एम वेल अवेयर कि क्या चल रहा है उसका, क्या हम एज अ फैमिली मेजर्स ले सकते हैं टू अवॉइड सर्टन थिंग्स विद हिज बिहेवियर, कैसे उसका ध्यान रखना है एंड ऑल ऑफ दैट। लाइक आई एम टोटली इन्वॉल्व इन दैट। समटाइम्स देर आर टाइम्स कि मैं यहाँ ऊपर आ जाती हूँ थोड़ी शांति के लिए, बिकॉज आई नीड टू फिल्म, आई नीड टू बी इन अ सर्टन मूड और समथिंग लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ट्राई टू स्टे इन्वॉल्व इन वट एवर इज हैपनिंग विद रवि। एंड येस यार, फिक्र तो होती है, ऐसे कैसे नहीं होगी। मेरा भाई है, मेरे माँ बाप का बच्चा है, मेरी फैमिली का पार्ट है एंड इट्स अ बिग पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस, राइट। लाइक मैं बचपन से जब से होश संभाला है मैं रवि के साथ ही रही हूँ, तो मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया दैट आई एम द सिबलिंग ऑफ समवन विद स्पेशल नीड्स and I treat my life that way and I treat him that way. So I really want कि जब भी आगे फ्यूचर में मेरे कोई प्लान्स हो या ना हो या फिर मैं अकेली भी हूँ लाइफ में, I just really want Ravi to be with me. You know, मैं उसका मरते दम तक ध्यान रखना चाहती हूँ and that is how it's gonna be. इसमें कोई दो राय, कोई डिस्कशन, कोई डिबेट नहीं है. I will be with Ravi till my last breath. Why didn't you post any pics with Ishan from your trip to Mumbai? That is because we broke up in the middle of the trip. I'm kidding. Like Ishan and I both are not those kind of people जो एक दूसरे के साथ फोटो पोस्ट करेंगे या बहुत ज़्यादा कंटेंट पोस्ट करते रहेंगे। जितना वो मेरे ब्लॉग में आता है उतना आता रहेगा, बट आई पोस्टेड पिक्चर्स ऑन द स्टोरीज। जब मेरा मन करे, मूड हो, वो अग्री करे तो ठीक है, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है। वी जस्ट एंजॉयड अ लॉट एंड ही वाज इन द व्लॉग, यू गाइस सॉ इट। हैज Ishan shut down Budget Bites? As whenever I pass through it, it's closed. The Budget Bite 2 on Jail Road, it is closed. They are currently looking for a new location जहाँ पे वो अपना proper Budget Bites 2 खोलेंगे। As of now Budget Bites 1 is open and you can just order through Swiggy or Zomato अगर आप उस एरिया के आसपास हो तो। That is all functioning. Marks doesn't matter. What's your opinion on this statement? Do you agree or disagree? Lots of love. Lots of love to you too. The marks वाला statement ना, I feel like it is very subjective. It depends on person to person, right? अगर मेरा प्रोफेशन लो, मेरे से आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपकी मार्कशीट क्या, आपके इस सब्जेक्ट में, इस क्लास में, कॉलेज में कितने मार्क्स आए, क्या ग्रेड है, मेरा किसी ने नहीं पूछा, बिकॉज माई फील्ड इज़ वेरी स्किल एंड टैलेंट बेस्ड. लाइक आई नीड टू डेवलप द स्किल्स ऑफ एडिटिंग, टू प्रेजेंट माई सेल्फ, टू डू मेकअप, टू हैव ओपिनियंस ऑन फैशन एंड एवरीथिंग एंड टू जस्ट शो माई लाइफ, बी प्रेजेंटेबल. बट उसमें नंबर्स का कोई खेल नहीं है. बट आई फील लाइक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आर यंग माइंड्स. अभी कोविड आया था, इतनी सारी वैक्सीन डेवलप हुई, वो क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि वो लोग पढ़ के इतना सब कुछ ज्ञान लेके अच्छे नंबर लाए हैं एंड दे आर एट पोजिशंस जहाँ पे वो कोविड जैसी चीज़ की वैक्सीन निकाल सके. आई थिंक वी नीड अच्छे यंग माइंड्स जो काफ़ी प्रोग्रेसिव हो एंड इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, टू बी एबल टू हेल्प दिस कंट्री मूव फॉरवर्ड. लाइक एज इन्फ्लुएंसर्स वी कैन ओनली डू सो मच. लाइक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करके आपकी लाइफ को थोड़ा और हंसी खुशी सा बना के, बट देर आर दीज पीपल जो पढ़ लिख के देश को और आगे बढ़ाएंगे. आई एम नॉट सेइंग कि स्किल और टैलेंट नहीं बढ़ाएंगे, बट एवरी वन हैज़ टू सपोर्ट द कंट्री इन अ वेरी बिग वे इन वट एवर फील्ड दे आर डूइंग. एंड जब टेक्निकलिटीज़ की बात आती है, जब नॉलेज और एकेडमिक्स की बात आती है, जो ट्रूली कंट्री को आगे ले जा सकते हैं, वो मार्क्स और एक एजुकेशन सिस्टम से ही होगा. सो आई फील लाइक एजुकेशन एंड ब्रिंगिंग गुड मार्क्स इज रियली इंपॉर्टेंट इफ यू आर फोकसिंग ऑन दैट फील्ड. Whereas as far as my field is concerned, it's not that important, but education in general is very, very, very important. What is your view on can and influencer appearances? I feel like you love it or you hate it. Influencers in the longer scheme of things are going to be anywhere and everywhere. I feel like अगर brands चाहते हैं influencers के वो numbers लाना, वो engagement लाना, they have that kind of power. I know Cannes is a film festival and वहाँ पे films और art के बारे में बात होती है, but this is also an opportunity for brands to be seen, to be heard, to be expressed. And आजकल इन्फ्लुएंसर्स को इसी चीज़ के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं. सो आई एम तो रियली प्राउड के इन्फ्लुएंसर्स हर जगह आ रहे हैं एंड आई वुड नॉट हैव इट एनी अदर वे. मेरे को कभी वो अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले वो अलग बात है, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट इन फ्यूचर आई फील लाइक इन द नेक्स्ट 5
3 years, influencers are going to be everywhere and you can't stop it. You just have to, अगर किसी को problem है उसे, you just have to make peace with it. So yeah, at the end of the day it's all a business ना, like give and take. So ये तो होगा ही, and जब तक influencing जिंदाबाद है तब तक ये can appearances और बहुत जगह और appearances भी जिंदाबाद रहेंगी. And इसी के साथ हम खत्म करते हैं ये secret and spilling the tea sort of a video Q&A and get ready with me. I am so relieved that this video got done. I've been speaking for 3 hours straight and this is the longest video that I'll have to edit and put it up tomorrow. But I'm really happy you guys. Thank you so much for watching this video. You can also follow me on Instagram अगर आप मेरी life के साथ up to date रहना चाहते हो. I upload a new video every Tuesday, every Friday सुबह 11 बजे. I'll see you guys next time. Subscribe. Bye bye.